We will quickly classify kingdom Animalia into phylum. Kingdom level of organization, symmetry, phylum, mode of development, and then phylum. एनिमेलिया को ये हो गया आपके मेटाजोआ, level of, there are two answers if we ask this question: what is the level of body organization? Then there are two answers. Some organisms have cellular level, that means they do not have tissues, and some organism have tissues. And then they also have, if they have tissue, then they also have organ, yeah, organ system in their body. Okay? तो जब सेलुलर लेवल है, कोई टिश्यू नहीं है, तो इसके हैं आपके पूरा अलग हो गया. These group of animals are grouped in a single category, that is phylum Porifera. If the body has tissue, organ, or organ system level of organization, then we will ask, this is a large group, many organisms are there, diversity. Then we will ask second question: what is the symmetry, body symmetry? Then we can get two answers. There may be radial or bilateral. ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है? Okay. If the radial symmetry is there, then there are two groups, two phylums. They are showing this. One is Coelenterata, yeah, Cnidaria. Another one is Ctenophora. When they are radial symmetry, essentially they are diploblastic tube. Means they do not have mesoderm, they only have ectoderm and endoderm. So there is no question of body cavity here. Bilateral symmetry. Now we will ask whether these bilaterally symmetrical animals, do they have true body cavity? Do they have coelom? Coelom means true body cavity. True coelom नहीं कहा जा सकता. True body cavity, yes, coelom. Do they have? The answer will be three types. No, they do not have body cavity. Some animals do not have body cavity. Without
without body cavity. With false, no, false body cavity, or with true body cavity, or Ceylon. Without body cavity, these animals are platyhelminthes. With false coelom, pseudocoelomates, इनको pseudocoelomate कहा जाता है. Pseudocoelomate. These are Aschelminthes. Aschelminthes. With true body cavity, these animals are called as coelomates. They are now, this again is a diverse group. So we will ask what is the mode of development. If they are protostomes, whether they are deuterostomes. Protostomes has physiocoelic mode of development and deuterostomes have enterocoelic mode of development. So physiocoelic. Physiocoelic. Enterocoelic. These are protostomes, these are deuterostomes. इसमें प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले बनता है, एनस बाद में बनता है. एंट्रोसिलिक में एनस पहले बना, माउथ बाद में बना. पीजोसिलिक मोड ऑफ डेवलपमेंट यानी ये जो प्रोटोस्टोम्स हैं वो आपके एनेलिडा डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है. एनेलिडा आपका मोलस्का, आर्थ्रोपोडा. कितने एनिमल्स हो गए बताएंगे? आर्थ्रोपोडा अकेले सारे 12 लाख. एंट्रोसिलिक, इकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा. तो इस आंसर के बाद हमको ये ग्रुप मिला. इसमें डिवीजन अभी नहीं कर पाए, ये सब मिले जुले हैं. अब इसको डिवाइड करने के लिए 4 कैटेगरी के आधार पर अभी आपको कितने ग्रुप मिल गए? नंबर 1, 4 क्राइटेरिया के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7. अभी 6 को और तोड़ना है, 7 को तोड़ना है.
तो ताकि एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा अलग अलग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर इसके बाद मोड ऑफ डेवलपमेंट के बाद अगेन सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आस्क्ड whether they are सेगमेंटेड बॉडी प्लान है कि नहीं। अगर सेगमेंटेड है तो दैट विल बिकम, दे मे बी इधर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यहाँ सेगमेंटेड वाला क्वेश्चन किए, मोलस्का अलग हो गया। सेगमेंटेड, यस सेगमेंटेड, यस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, ये एक ग्रुप बनेगा। मोलस्का अलग हो गया, अनसेगमेंट मोलस्का, अनसेगमेंटेड मोलस्का। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछे कि इसको अलग कर रहे हैं, 6 को ग्रुप को तोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वेदर द एक्सोस्केलेटन नॉन एक्सोस्केलेटन chitinous is exoskeleton is present or not। ठीक है, मोलस्का तो पहले अलग हो गया, अनसेगमेंटेड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन, whether chitin is present or not। if chitin is present then हो गया आर्थ्रोपोडा, if not present no chitin then annelida। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाला अलग, ये अलग अलग हो गया, annelida मोलस्का आर्थ्रोपोडा। नाउ वी विल ब्रेक दिस एंथ्रोसिलिक वन, इकिनोडर्मिटा हेमिकोडर्टा कॉर्डेटा। ओके, तो पहले इकिनोडर्मिटा हेमिकोडर्टा में क्या है, गिल क्लेफ्ट्स है, but they do not have notochord। they have gill clefts but they do not have notochord। ये chordata में नहीं आया, लेकिन गिल क्लेफ्ट्स है। इकिनोडर्मेटा है आपका अनसेगमेंटेड, इसमें भी फिर क्वेश्चन पूछेंगे सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड। या सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, if notochord is yes then they are called beta। चलो पहले नोटोकॉर्ड नहीं है, then they are इकिनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। नोटोकॉर्ड का सवाल पूछे जहां अब कोर्डेटा अलग हो गया। और डेटा और टाटा लिख दिया, और डेटा अलग हो गया। अभी भी ये दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। अब सवाल पूछेंगे कि whether they have gill clefts or not। gill clefts, gill clefts के सवाल पर नो जो है वो इकिनोडर्मेटा हो गया, और यस में हेमिकोर्डेटा हो गया। कितना ग्रुप हो गया अब आपका, फाइलम तक अलग, 6 को तोड़ दिए, छठा ग्रुप को, तो इसको फिर नंबरिंग कर दो। इसमें एनेलिडा सबसे पहले अलग जो हुआ मोलस्का, ये हो गया आपका मोलस्का छठा नंबर, और फिर एनेलिडा 7वां नंबर, आर्थ्रोपोडा 8वां नंबर,
आर्थ्रोपोडा ऊपर 7वां नंबर, एनेलिडा 8वां नंबर। और फिर जब हम सवाल पूछे कि उनके पास नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, तो कॉर्डेटा अलग हो गया। 8वां 9वां कॉर्डेटा, नो नोटोकॉर्ड इज नॉट देयर। गिल क्लेफ्ट, एक सवाल और ऐड हुआ गिल क्लेफ्ट का, ठीक है। इकिनोडर्मेटा 10वां, हेमिकोर्डेटा 11वां। ये फाइलम अब सेपरेट आउट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, टिल नाउ इज इट क्लियर टू यू? हेलो, आवाज आ रही? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है आपको? ओके, अब हम इसमें से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया आपका, यूज टू फॉर क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, फाइलम तक कर लिए। फाइलम को फिर क्लास में बदलना है, तो ये थोड़ा विशाल हो जाएगा टॉपिक। हर फाइलम को क्लास में कन्वर्ट करें, उसका सबका कैरेक्टरिस्टिक बताएं, क्राइटेरिया बताएं। तो आप पहले हम आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो पहले कॉर्डेटा। सर 7 नंबर फिर से जरा सा बता दीजिए ना। 7th नंबर कौन सा, ये दिस वन? यस सर, वो साइड में जो है। जी जी। अच्छा अच्छा, देख लो 7th नंबर हो गया। आप सवाल किए इसको तोड़ने के लिए, छठा ग्रुप को जिसमें एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा है। तो पहला सवाल किए वेदर बॉडी इज सेगमेंटेड और नॉट। नो, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, तो मोलस्का हो गया। बॉडी इज सेगमेंटेड, तो दिस इज द ग्रुप not categorized now still. Then we will ask whether there is a presence of chitinous exoskeleton or not on the body, क्योंकि एनिलिडा का क्यूटिकल जो है वो नॉन काइटिनस होता है, अर्थवर्म। ओके, और आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है। ठीक, दूसरा सवाल आप ये भी कर सकते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस, एनिलिडा के पास ज्वाइंट अपेंडेजेस नहीं, आर्थ्रोपोडा के पास है। ठीक है, दोनों का बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन ज्वाइंट अपेंडेज सिर्फ एनिलिडा के पास है, सॉरी आर्थ्रोपोडा के पास। ओके, एनिलिडा के पास नहीं है ज्वाइंट अपेंडेज। तो ये सवाल की काइटिनस एक्सोस्केलेटन है कि नहीं है, तो आर्थ्रोपोडा के पास है, तो 7th फाइलम आर्थ्रोपोडा अलग हो गया। नो, काइटिनस इज नॉट एक्सोस्केलेटन नॉट प्रेजेंट एनिलिडा। ओके, कंफ्यूजन यस है? सर। नो सर। और ये एंटेरोसिलिक मोड ऑफ डेवलपमेंट वाले एनिमल्स, इनको कहा, ये मोड ऑफ डेवलपमेंट है, बट द एनिमल्स आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोसोम्स। मोड ऑफ डेवलपमेंट इज सीजोसिलिक and these animals are called as protostomes. Animals are called as, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, मोड ऑफ डेवलपमेंट इज सीजोसिलिक, एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स। इस पूरे ग्रुप को हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, एनिमल्स, और इसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स को तोड़ने के लिए हम कुछ सवाल किए, सेगमेंटेशन और काइटिन, 2 सवाल में टूट गया। ड्यूटेरोसोम को तोड़ने के लिए फिर 2 सवाल किए, नोटोकॉर्ड और गिल क्लेफ्ट का, ये टूट गया, अलग अलग फाइलम में। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको? यस सर। अब हम आपको कोर्डेटा का यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कोर्डेटा को तोड़ेंगे, यहाँ से अलग करेंगे। तो कोर्डेटा को आप समझिए, इसको मिटा दें स्टूडेंट्स। यस सर। क्योंकि कोर्डेटा को हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी बता सकते हैं आपको, इतना डिटेल में हो जाएगा कि 15 लेक्चर में भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम उसको छोटा करना चाहते हैं बहुत, ताकि आपको ज्यादा उसमें यूज इसका यहाँ पर है।
को मिटा देता हूं। आप ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ नोट है, या तो आप डायरेक्ट उसको भी देख सकते हो, UG3 को जब पढ़ाए, UG2 को पढ़ाए थे, मैं वही शेयर कर दे रहा हूँ। यहीं से आप दिख रहा है स्क्रीन स्टूडेंट्स? यस सर। नहीं, मेरा राइटिंग है, ये नोट है। देखिए कोड डेटा, कोड डेटा का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल क्लेफ्स, पेयर्ड फिन्स, ओके, एंड पोस्ट एनल टेल। इसमें कोड डेटा पहले अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन हेमी chordata was considered as subphylum of the chordata. Now hemichordata is placed as separate phylum. तो इसमें हमने इसको सब फाइलम लिखा है, ठीक है। तो इसको अलग भी समझ सकते हो या इसी में देख लो, दोनों तरीका से एग्जाम में आप लिख सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर कोर्डेटा में ये फाइलम है, इसके सब फाइलम्स 4 हो गए, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। हेमिकोर्डेटा according to this system of classification, हेमिकोर्डेटा एक सब फाइलम है, दूसरा सब फाइलम, इसका क्लास तक जाएंगे, ठीक है। कोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कितना क्लियर है? हेमिकोर्डेटा को स्ट्रोमोकोर्डेट्स भी बोलते हैं, यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, सिफेलोकोर्डेट्स को लैंसिलेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एनिमल है लैंसिलेट, ब्रैंकियोस्टोमाटा, एक ही क्लास है इसमें ब्रैंकियोस्टोमाटा। फिर वर्टिब्रेटा के 2 सुपर क्लास, एग्नाथा एंड ग्रैथोस्टोमाटा। यहाँ से शुरू करती है कि ये हेमिकोर्डेटा, स्टोमोकोर्डेट्स, it has 2 classes, Enteropneustra and Pterobranchia. Enteropneustra में Balanoglossus and Pterobranchia में Cephalodiscus। कोर्डेटा में फिर आपका यूरोकोर्डेटा में, ट्यूनिकेटा में 3 क्लास हैं, एसीडीसी, थैलीसी, लार्विसी। एसीडीसी का एग्जाम्पल है हर्डमिनिया, थैलीसी का एग्जाम्पल है पायरोसोमा, लार्विसी का आइक्लोप्लूरा। सिफेलोकोर्डेटा, लैंसिलेट एक ही क्लास है इसमें, जिसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमाटा, इसलिए इस पूरे सब फाइलम को ब्रैंकियोस्टोम्स भी कहते हैं, सिफेलोकोर्डेट भी कहते हैं, लैंसिलेट ऑर्गेनिज्म है, इसका कॉमन नेम है लैंसिलेट। कह सकते हैं। लैंसिलेट ही एम्फियोक्सिस है, नाम सुने एम्फियोक्सिस का? यस सर। एम्फियोक्सिस सिफेलोकोर्डेट है, ठीक है, हमारे एंसेस्टर, वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, दैट्स व्हाई दे आर वर्टिब्रेटा। Cephalochordates, they are lanceolates but they are craniates too। इनके पास क्रेनियम आ गया, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं आया, क्रेनियम आया, स्कल आ गया, अपीयरेंस हो गया, तो ये क्रेनिएटा है। तो सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो क्रेनिएटा है, लेकिन सारे क्रेनिएटा वर्टिब्रेट्स नहीं। समझ रहे बात को? फिर वर्टिब्रेटा को, इसको आप 2 सुपर क्लास
एग्नाथा एंड ग्रैंथोस्टोमाटा। एग्नाथा में ये सुपर क्लास में ये जो डिवीजन हुआ जॉ के आधार पर हुआ। जबड़ा है जिसमें नहीं वो एग्नाथा है, जिसमें जबड़ा है वो है आपके ग्रैंथोस्टोमाटा। जॉलेस एग्नाथा, जॉ विथ जॉ ग्रैंथोस्टोमाटा। क्योंकि जॉ तभी है, जबड़ा तभी आएगा जब स्कल आएगा। स्कल नहीं था यहाँ, कहीं किसी के पास जबड़ा नहीं है। स्कल आने के बाद जबड़ा बना, जिसमें जबड़ा बना वो ग्रैंथोस्टोमाटा कहलाया। एग्नाथा जिसमें जबड़ा नहीं। एग्नाथा में भी आपके 3 क्लास हैं, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा और ब्रैंकियोस्टोमाटा में कंफ्यूज नहीं करोगे, समझे? ये ब्रैंकियोस्टोमाटा। दोनों क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज। सेफेलोकॉर्डेटा और ब्रांचियोसिलोमेटा सर दोनों एक ही है। सिफेलोपोडेटा जो है वो ब्रैंकियोस्टोमाटा। ब्रांचियो ब्रैंकियोस्टोमाटा, सिफेलोपोडेटा ये एक ही है। लैंसिलेट एग्जाम्पल है, कॉमन नेम है, और एम्फियोक्सस उसका जीनस है। और स्पीसीज बहुत तरह के हैं एम्फियोक्सस। एग्नाथा में भी देखिए सिमिलर नेम लगेगा, साइक्लोस्टोमाटा। कंफ्यूज नहीं करोगे उससे, क्योंकि ये है आपके साइक्लोस्टोमाटा इज द क्लास ऑफ एग्नाथा। मुंह इसका गोल होता है इसलिए साइक्लोस्टोमाटा नाम है। जबड़ा नहीं है, ओके, लेकिन क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम भी है। मतलब प्रिमिटिव फॉर्म में ही है, रूडिमेंट्री फॉर्म में है, लेकिन है। साइक्लोस्टोमाटा एग्जांपल्स आर लैम्प्रे एंड हैगफिशेस। यानी हैगफिशेस हो गया मिक्सिनी, लैम्प्रे हो गया पेट्रोमाइजोंटिडा, टीडा पेट्रोमाइजोंटिडा। इस क्लास में साइक्लोस्टोमाटा क्लास में वो और क्लास है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए एग्नाथा के, जॉलेस। एक का नाम है टेरस पिटिडोमॉर्फी, दूसरे का नाम है सिफेलस पिटिडोमॉर्फी। एक्सटिंक्ट होने का कारण था ये दोनों जो क्लास है इनका, इनके ऊपर बॉडी आर्मर थे, कवच, बोनी स्पिक्यूल्स, एक्सोस्केलेटन। तो जिस भी लिनिएज में एक्सोस्केलेटन आया स्ट्रेटजी, उसको डिसएडवांटेज था, वो बाद में विलुप्त हो गए। समुद्र में रहते थे, आपस में टकराते थे दीवारों से, समुद्र की सतह से आपस में खट 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 खट, और बोनी स्पिक्यूल्स था, ये इनके लिए डिसएडवांटेज बन गया। और ये जब एक्सटिंक्शन इवेंट हुए तो इसमें फिट नहीं हुए, ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो टेरस पिटिडोमॉर्फी और सिफेलस पिटिडोमॉर्फी 2 तरह के थे। बड़े बड़े मछली के जैसे थे, उनके बॉडी पर कांटे जैसे बोनी बड़े बड़े कांटे थे। फिर देखिए ग्रैंथोस्टोमाटा में आपका कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। बता दे रहे हैं। सर क्लास तक ही बताना है, ठीक है? उसके बाद है ग्रैंथोस्टोमाटा सुपर क्लास का क्लास 8 क्लास है इसमें, 8। नंबर 1 लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिचथिस, अकैंथोडी, ऑस्टिचथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। 8 classes are there. इन 8 classes में जैसे एग्नाथा में सिफेलस पिटिडोमॉर्फी एंड टेरस पिटिडोमॉर्फी दोनों एक्सटिंक्ट हो गया,
एक्सोस्केलेटन वाला क्लास लीनिएज, जो दो तरह का स्ट्रेटेजी अपना अपना है इवोल्यूशन में, एंडोस्केलेटन स्ट्रेटेजी, एक्सोस्केलेटन स्ट्रेटेजी। एक्सोस्केलेटन स्ट्रेटेजी वाला एक्सटिंक्ट हो गया कुछ साल, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद, और पहले वो डोमिनेट किए, बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गए। और उसी तरह जो जो जिनके पास जबड़ा था, जॉलेस में भी एक्सोस्केलेटन ब्रांच आया, और जिनके पास जबड़ा था उनमें भी एक्सोस्केलेटन ब्रांच आया। ये प्लेकोडर्मी और एकेंथोडी, ये दो क्लास जो थे, इनके ऊपर भी बोनी स्पिक्यूल्स थे और बॉडी आर्मर था। लेकिन ये इनके पास जबड़ा भी था, ये खतरनाक थे। तो लेकिन फिर डिसएडवांटेज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये सब इवोल्यूशन में सिलेक्शन प्रेशर में डिसएडवांटेज, ये दो क्लास कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, प्लेकोडर्मी एंड एकेंथोडी। जो क्लास आज बचे हुए हैं लिविंग क्लास, वो हैं आपके कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्टिथिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए आप लोग? अब देखिए, मैं आपको इसमें से कुछ कुछ का एग्जाम्पल बता देता हूँ, जरूरी है, आप जानते ही हैं एग्जाम्पल। और इन क्लासिफिकेशंस का मतलब कैसे हुआ इसमें, दैट आल्सो यू नीड टू नो, क्योंकि क्लास है आपका कैरेक्टर्स क्राइटेरिया। तो आप यहाँ तक तो समझ गए, ग्नाथोस्टोमाटा जबड़ा तक आया, ये क्यों कैसे डिवाइड हुआ, यहाँ पर क्लास, ये तो एक्सटिंक्ट हो गया, बॉडी आर्मर था, जबड़ा भी था, बॉडी आर्मर था, एक्सटिंक्ट हो गया। लिविंग क्लास कॉन्ड्रिचथिस, पाइसेज है, ये दोनों बिलोंग करते हैं पाइसेज से, कॉन्ड्रिचथिस एंड ऑस्ट्रिचथिस। ओके, पाइसेज का कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन या कार्टिलेज, एंड ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। तीन इसकी पहचान है, गिल्स, ठीक है, और स्केल्स नंबर 3, एंडोस्केलेटन, इधर कार्टिलेज या बोन, वो कहलाए पाइसेस। जिनके पास ये तीनों गुण है वो हो गए पाइसेस। फिर पाइसेस के अंदर देखा गया कि अब नहीं, इसको सेपरेट क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह के एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेजिनस और बोनी, और एनाटॉमिकली दीज टू पाइसेस आर वेरी डिफरेंट। एक के पास एयर ब्लैडर है, दूसरे के पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं, और भी फीचर्स बहुत डिफरेंट है, तो इनको सेपरेट क्लास किया गया, कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्टिथिस, ठीक है। तो कॉन्ड्रिचथिस हो गए आपके एक्सोस्केलेटन, जो है स्केल तो है लेकिन प्लेक्वायड स्केल टाइप। एंडोस्केलेटन स्केल जो है वो एक्सोस्केलेटन है, छोटा एक्सोस्केलेटन। इन सबके पास प्लेकोडर्मी, एकेंथोडी के पास बड़ा बड़ा प्लेट हुआ करता था, बोनी स्पिक्यूल्स बड़े बड़े। ये स्केल्स जो है फ्लैट हैं, बॉडी से सटे हुए हैं, तो एडवांटेज एक्सोस्केलेटन। ये स्केल का जो टाइप है प्लेक्वायड टाइप है कॉन्ड्रिचथिस में, और एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है। बोनी बोनी फिशेस यानी ऑस्टिथिस में एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। स्केल जो है इसमें सिटेनॉइड टाइप का स्केल है, ठीक है ना, सिटेनॉइड के पास, कॉन्ड्रिचथिस के पास प्लेक्वायड, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन
बोन, एक्सोस्केलेटन प्लाकोइड टाइप स्केल, एक्सोस्केलेटन सिटेनॉइड टाइप ऑफ स्केल, दोनों ग्रुप अब अलग हो गया पाइसेस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हेलो, यस सर। सर हाँ, अब ये क्वेश्चन के आधार पर ये ग्रुप अलग हो गया, पूरा अलग हो गया। लेकिन इनके पास ये क्वेश्चन अगर पूछें तो इनके पास क्या आंसर है? इन एनिमल्स के पास कोई आंसर नहीं है। तो है आंसर, एंडोस्केलेटन बोन का है या कार्टिलेज का बना हुआ है, बॉडी पर स्केल है कि नहीं है, गिल्स है कि नहीं है, आंसर है, ऐसा नहीं कि नहीं आंसर है। लेकिन इनके आंसर अलग है, इनके आंसर अलग है। जैसे गिल पर अगर सवाल पूछे कौन रिच, जीवन भर इनके पास गिल है, ठीक है, इनके लार्वा के पास भी गिल है, इनके भी डेवलपमेंटल स्टेज में हर स्टेज में गिल है। गिल इज द प्रिंसिपल ऑर्गन, हर स्टेज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन अब इन अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स जो है वो एडल्ट फॉर्म में गायब हो जाते हैं, लेकिन लार्वल फॉर्म में है। कौन सा एनिमल है बता सकते हैं?